Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your English teacher Zia. Welcome to English grade 9. Today we are going to cover yet another SLO from our unit number 3. And today we are going to talk about another part of speech. This is about grammar. Let's see. Demonstrate knowledge and application of parts of speech in oral and written communication in varying degrees of complexity. So this is the same SLO for nouns, pronouns, verbs, adjectives and all that. Today we are going to discuss verbs. The definition of verb, what is helping verb, main verb and transitive and intransitive verbs. We are going to see them with examples. I hope that I'm pretty much audible for students on Zoom class. Okay, this is our vertical linkage. And now, just let's take a very quick observation of you and your test. Let's recall what is a verb. Yes. Those words which are showing any action or just a state of being also. All right, students. So it's a part of speech, a very important part of speech, जिसका हमें हर aspect clear होना चाहिए. Main verb क्या है, helping verb क्या है, transitive, intransitive, उसमें direct, indirect objects आते हैं. Intransitive में कोई object नहीं होता and all that. तो हम उसको detail से देखेंगे. So brace yourselves. Now, I hope that you can see it on the screen, students. When you say eat breakfast, can you just say eat alone or do you need to include what you're eating? When I'm saying I'm eating, क्या कोई ऐसा लफ्ज भी आगे आना चाहिए? क्या खा रहा हूं? कुछ ऐसा लफ्ज भी आना चाहिए. Eat क्या है? Verb. एक एक्शन है. खाना एक अमल है, एक एक्शन है. तो ये verb है. Alright? Now, अब हमने ये भी तो बताना है कि वो जो अमल हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उस अमल को रिसीव कर रहा है. इन दैट केस इट वाज ब्रेकफास्ट. ऑलराइट. तो इसका मतलब है कि वर्ब्स के साथ भी आगे पीछे भी कुछ चीजें हैं जो हमने देखनी है. ऑलराइट. इफ यू से शी इज रीडिंग, नाउ व्हाट इज क्या है इस सेंटेंस में? इज का क्या रोल है? हेल्पिंग वर्ब है. किसको हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब को, जो हमारा मेन वर्ब है रीडिंग का. ऑलराइट. ओके, तो पहले में देखते हैं. जब आप सिर्फ कहते हैं ईट, दैट इट्स नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. ईट व्हाट? यू हैव टू गिव समथिंग, यू हैव टू गिव अ वर्ड विद दैट सो दैट इट क्लैरिफाइज इटसेल्फ एंड इट मेक्स सेंस. समझ तो आएगी ना जब हम वर्ब के साथ कुछ और भी यूज करेंगे. ऑलराइट. So I hope you know about verb, and there are different types and different categories, different kinds of verbs that we are going to see and that you use in your daily life. जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, we are using helping verbs, main verbs, transitive, intransitive and all that. All right. So after this brainstorming session, let's revise what is a verb. A verb is a word. लफ्ज होता है, लेकिन उस लफ्ज का क्या फंक्शन है? To show, to express an action, occurrence, कुछ भी चीज जो अकर करती है, और state of being in a sentence. State of being मतलब कौन सी चीज किस हाल में है, in what state of existence or being it is. Verbs are essential components of a sentence. It means you cannot make sentences without using verbs. All your sentences, most of them contain verbs, so it is very much important to understand them, and they convey the action or the subject's state. So this is all about verb. Let's move on. Okay. Run, eat, sing, even is a verb. Helping verb है, वो बात की बात है, लेकिन पहले ये verb है. Was, were, ये सारे verbs हैं. And exist, just exist करना, होना, ये भी एक एक्शन है.
इसके लिए भी एक एफर्ट लगता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. Verbs are often conjugated or made to or used to reflect different tenses, moods or aspects. Now, जब हम tenses यूज करते हैं तो हमारा verb forms भी change करता है, second, third, right? तो थोड़ा सा different हो जाता है, but still it is a verb. And moods also, or different aspects of something. So these are our verbs. Now, okay. So here is a diagram which tells you that we have the main part of speech verb. It is categorized into different types. We have main verbs. We have auxiliary verbs. Now, वैसे तो auxiliary main, auxiliary और helping verb interchangeable हैं, लेकिन there is a small difference. So that's why we have categorized that. पहले मेन वर्ब को देखते हैं. मेन वर्ब में क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वर्ड्स होंगे जो ट्रांजिटिवली यूज होंगे और इंट्रांजिटिवली. कौन से वर्ड्स होंगे? और कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं. कुछ वर्ड्स हैं सिर्फ इंट्रांजिटिव, उनके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव हैं, इसका मतलब है उनके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा. अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, हम वो देखेंगे ये क्या होते हैं. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास आके आ जाता है मॉडल वर्ब्स. कौन से हैं मॉडल वर्ब्स? यस स्टूडेंट्स, लेट्स चेक इफ यू आर अटेंटिव. अभी तक आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा है. कौन से वो वर्ड्स हैं जो मॉडल वर्ब्स कराते हैं? मॉडल विद ए, नॉट ई. मॉडल विद ए, मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? Okay, I'll give you a hint. Yes, students who have joined us on Zoom class. आप में से कोई बता सकता है मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? शाबाश, जल्दी जी. आज से Sir, modal verbs are those that express the mode of another verb. हाँ, For okay, example, asking question. all right. तो ये that's a very appropriate answer. तो मॉडल वर्ब्स वो हैं जो हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, दिखाने के लिए कि कोई किसी चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं. कौन से वर्ड्स हैं वो? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, शैल, वुड और ought to, need to. ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं. आई नीड टू डू इट, ये आपको मूड बताता है कि इस चीज का होना जरूरी है. नेसेसिटी को बताता है. पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, बारिश कल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. लेकिन मे क्या है? मॉडल वर्ब. ये दिखाता है जब हमने परमिशन लेनी है, जब हमने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताना है, किसी चीज की नेसेसिटी को बताना है, परमिशन लेनी है. जैसे मे आई गो टू द वॉशरूम और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर इज रॉन्ग. यस यू कैन, आप सही सलामत है, आप जाके पानी पी सकते हैं, पहले भी पीते रहे हैं. लेकिन यहां हम कहेंगे मे, बिकॉज यहां पर क्या होगा? परमिशन ली जा रही है. मे आई, then I will allow you and then you can do it. All right. So all these different modal verbs, they are used in different scenarios and different situations. तो वो सारे modal verbs हैं. Helping verbs कौन से हैं? जी, अभी हमने helping verbs की बात की थी. कोई is, am, was, were, और जो singular के लिए होगा and is a conjunction. Okay. तो वो वर्ड्स जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. आई एम राइटिंग, राइटिंग इज माई मेन वर्ब, बट एम इज माई हेल्पिंग वर्ब विच इज शोइंग के ये मैं करंटली कर रहा हूं. आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग. तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब के लिए यूज होते हैं. डिपेंड्स अपॉन द टेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट. ऑल राइट. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को हम देखेंगे. रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इररेगुलर वर्ब्स होते हैं. ठीक है. फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, तो ये सारी हम चीजें बाद में देखेंगे. तो ये एक पूरा मॉडल है आपके सामने, पूरी एक डायग्राम है. इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. इस तरह हम वर्ब्स को
कैटेगराइज करते हैं. डिफरेंट टाइप्स निकल आई ना आगे. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स, दे आर शोइंग द मेन एक्शन दैट इज हैपनिंग. ऑलराइट, main verbs carry the primary meaning in a sentence. They express the action or state of being of the subject and are essential for conveying the main idea of the sentence. Main verb, आप helping verb के साथ कोई जुमला नहीं बना सकते. ऑलराइट, कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. वो तो हेल्पिंग वर्ब है, वो तो किसी को हेल्प करेगा ना, उसकी बस यही एक कंडीशन है कि वो हेल्प करता है. ऑलराइट, तो ये हमारे मेन वर्ब्स हैं जहां पे मेन एक्शन होता है. ओके, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ही स्लीप्स पीसफुली. अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब तो नजर ही नहीं आ रहा. बताएं, सिंग्स हमारा मेन वर्ब है, स्लीप हमारा मेन वर्ब है. ये क्या है? ब्यूटिफुली, पीसफुली, दीज आर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स? एडवर्ब्स, राइट, वेरी गुड. नाउ ही स्लीप्स पीसफुली, ये क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग. किस कंडीशन में है वो? सोने की कंडीशन. शी सिंग्स ब्यूटिफुली, लेकिन ये वाला जो वर्ब है ये एक्टिव है, एक्टिव एक्शन के लिए है, और नॉट फॉर स्टेट ऑफ बीइंग बट फॉर द मेन एक्शन. क्लियर है? ओके, अब यहां पे आप बताएंगे कि मेन वर्ब्स कौन से हैं इन सेंटेंसेस में. शी इज रनिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग. Running, the teacher explained the lesson clearly. Explained, they were watching a movie. Good, Watching. very good. He has finished his homework already. G students, Finished. finished. Very good, mashallah, you're very active today. The cat jumps onto the window. Jumps. You're not. Yeah, that's very good. You're not even letting me finish the sentence. That's an improvement. All right. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स. ये क्यों इजी है टॉपिक? पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं हम, इसलिए इजी है. ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स work in conjunction with the main verbs to express various grammatical aspects such as tense, mood, or voice, or emphasis. When we are emphasizing something, when we are showing mood, when we are showing tense, past, present, future, and when we are showing the voice, active, passive, and all that. Helping verbs do not carry the main meaning of the sentence. Main meaning नहीं है helping verbs में, उसको एक main verb चाहिए. Alright, but instead helps the main verb in conveying additional information about the action or state of being. Additional information देता है helping verb. ठीक है? Clear है? Okay. Now, before we begin the activity, he has eaten dinner. Eaten तो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन वो कौन सा टेंस है? कब उसने खाया? खा चुका है, खाने वाला है, खा रहा है, क्या है? हैज. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा. ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें बता देता है कि टेंस कौन सा है. यस, हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है टेंस कौन सा है. और दे विल बी अराइविंग सून, विल बी. ओके, और ये बी क्या कर रहा है यहां पे? ये भी हेल्प कर रहा है. ठीक है, इससे क्या बना? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन गया. क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी इजी, आप ये पिछले ग्रेड्स में पढ़ते आ रहे हैं. अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. इज देयर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन स्टिल? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट? ओके. Now, you are going to identify the helping verbs. Such a easy task. She is writing a letter to her friend. Yes, very good. Now, do it fast, okay? They have completed their assignment on time. Okay. He was talking on the phone when I arrived. Was. कौन सा tense show कर रहा है ये? Past. We are planning. Okay, good. We are planning a trip. The cake Are. has been.
जी कौन सा टेंस बता रहा है हैज बीन? फ्यूचर का? Past perfect. फ्यूचर फ्यूचर का तो नहीं है। फ्यूचर द केक हैज बीन बेक्ड परफेक्टली। हैज हैज बीन बीन पास्ट का है। Has been. ओके Perfect दैट्स answer. गुड। नाउ मेन वर्ब क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब दोनों का क्या काम है क्लियर हो गया। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में। वो कौन से हैं हम देखते हैं अभी। इन अ सेंटेंस verbs can be categorized as either transitive or intransitive. Transitive verbs, they require a direct object to complete their meaning. The action is done to someone or something. किसी पे वो एक्शन हुआ है किसी चीज पर या किसी इंसान पर, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम देखते हैं वो क्या होता है, किस तरह वर्क करता है और किस तरह हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ ये जो वर्ब्स हैं गिव, गेट, बाय, सेल, टेक, मेक, ये वो वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव हैं। इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए। आई मेक व्हाट, आई गिव, और शी सेल्स व्हाट। हमने इस व्हाट को आंसर करना है कि वो क्या चीज है और वो क्या होता है। जी जी अबीहा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, I want to add a point. I learned somewhere that if a sentence has a question, yeah, if a sentence raise a question of whom or what, it is a transitive sentence, a transitive यस verb. गुड। हु एंड व्हाट को हम इसमें केटर Whom करते and हैं। what. यस हु एंड व्हाट, गुड। नाउ ये वो वर्ब्स हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा एंड दे डू नॉट मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कांट से जैन बॉट, हैव टू आंसर समथिंग राइट। ऑलराइट गुड, because it does not mean anything. If we say Zan bought a birthday card, तो ये birthday card क्या है, it's an object। उसने खरीदा, खरीदना एक अमल है, लेकिन क्या खरीदा, she bought, और उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा दूं, so that doesn't make sense। it means that an object is required। so इस तरह के जो सारे verbs होते हैं और बहुत सारे हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। दिस मेक सेंस एज इट हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बर्थडे कार्ड, शोइंग अस व्हाट द एक्शन बाइंग इज बीइंग डन टू, किसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि Sir, इसमें एक because ही इसमें ऑब्जेक्ट है, कोई वही डायरेक्ट predicate होगा। का question नहीं है. गुड, ओके, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। ही क्विकली किल्स अ डो, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, किल्स, एक ही वर्ब है। और ये किल्स ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब है जिससे मोर इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किल्स व्हाट, अ डो। द टीचर टॉट अ लेसन, टॉट इज आवर वर्ब, व्हाट वर्ब, ट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेसन, इन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सना टुक मी टू द लाइब्रेरी, टुक, टेकिंग समथिंग इन द पास्ट फॉर्म है ये आपको टेंस का भी बता रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइब्रेरी, कि कहां लेके जा रहा है। तो व्हाट, हाउ, ये आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, a direct object receives the action of a transitive verb directly। जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो इनडायरेक्टली कर रहा है indirect object। it answers the question what or whom after the verb। an indirect object, it can be a noun or a pronoun that receives the direct object। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके,
अब आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, और जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं आप भी अटेंटिव हो जाएं जरा एंड गिव योर रिस्पॉन्स. ओके, शी सेंट हर फ्रेंड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम पेरिस. कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें? डायरेक्ट. जी. मैं तो. यस. सेंट इज अ डायरेक्ट ये देखें, वर्ब. हर फ्रेंड और पोस्ट कार्ड दो सर हैं. इंटरेक्ट. जी. हर फ्रेंड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है. और पोस्ट कार्ड क्या है? डायरेक्ट. डायरेक्ट. मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप देखें किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा होता है, डायरेक्ट बाद में. लेकिन ऐसा भी होता है कि एक ये स्ट्रक्चर भी है कि पहले डायरेक्ट आएगा और फिर इनडायरेक्ट आएगा. ठीक है, जब हम एक्टिव पैसिव में करेंगे तो फिर चीजें तो चेंज हो जाएंगी ना. तो फिर आपने केयरफुली देखना है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है डायरेक्टली और कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है. द टीचर असाइंड अ प्रोजेक्ट टू अस. ये बताएं. डायरेक्ट है. प्रोजेक्ट इज डायरेक्ट टू अस. वी आर रिसीविंग दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हम क्या हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यस. He showed his parents the new car. His parents new car. जी बताएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हिज पेरेंट्स डायरेक्ट है. न्यू. ओके. इनडायरेक्ट. जी. बाकी अभी बात करते हैं इस पे. जी बताएं पहले जूम क्लास वाले. न्यू का इनडायरेक्ट होगा सर. सर हिज पेरेंट्स इनडायरेक्ट होगा, न्यू कार डायरेक्ट होगा. जी. She told the story to the children who were waiting. She told the story. क्या बताया उसने? Story to the children. किसको बताई? Children who were waiting. Okay. यहां बताएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. चिल्ड्रन इनडायरेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट. जी. The keys were handed to him by her. जी. हिम और हर पे फोकस करें. हिम और हर पे. कीज किसको मिली? उसको. किससे मिली? उससे. तो कैसे होगा? दिस इज जी. इनडायरेक्ट. Which one? इनडायरेक्ट. Which one? हिम एंड हर बोथ. हिम एंड हर. They are both indirect. कैसे? हिम इज इनडायरेक्ट एंड हर इज डायरेक्ट. हिम जी. इज डायरेक्ट एंड हर इज इनडायरेक्ट. गुड. ओके. अब. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक दफा स्ट्रक्चर रिव्यू करवा दीजिए. जी वो आगे स्ट्रक्चर आता है, मैं आपको बताता हूं यहां पे ना. हम स्ट्रक्चर को देखेंगे आगे जाके. ओके. नेक्स्ट. Intransitive verb, which is not transitive. In means it is not transitive and इसमें object की tension ही नहीं है because let's see, it does not take an object. Using an object immediately after an intransitive verb will create an incorrect sentence. अगर आप object लगाएंगे that would be incorrect because the verb does not demand it. So he dared romp, not alarm it. No object here. Still, इसमें verb है. verb है इसमें. verb तो है. verb तो है ना. object नहीं है. verb तो है. dare करना, alarm करना. now intransitive verb क्या है हमारे पास? romp. okay. Penny lay at rest. what is lay? It's a state Lay of is an being. intransitive verb. Yes, it's a intransitive verb
क्योंकि ले के साथ हमें ये वो वाले लिस्ट ऑफ वर्ब्स होंगे जिसके साथ अनलाइक ट्रांजिटिव वी डोंट नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. This verb didn't. Uh, यस. this verb didn't raise the question of what and whom, so that's why it is यस. intransitive verb. गुड अभिहा. That's good. That's right. Okay. Henry bought his granny a birthday card. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है जो उसने दिया? बर्थडे कार्ड. किसको Birthday दिया? card. वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? रिसीव करेगा. और यही इसका स्ट्रक्चर है. वर्ब को चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट को क्या चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. The indirect object, his granny, shows us who the action is being done for, giving us all the information we need. अगर हम इसमें से indirect object हटा दें, Henry bought a gift card या birthday card, तो बिल्कुल ठीक है. इसमें bought के साथ verb. लेकिन जब हमने additional information देनी है तो हमें कुछ चाहिए उसके साथ, राइट? हमें एक indirect object चाहिए. ऑल राइट. तो ये है लिस्ट ऑफ वर्ब्स. प्ले, रीड, कैंसल, रिटर्न, रन, ऑल दीज आर वर्ब्स, बट they can be used both as transitive and intransitive. All right. अब जब हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव. और जब हम देंगे तो ट्रांजिटिव. बट ये दोनों वर्ब्स देखते ही आपको पता चलेगा कि ये दोनों तरह यूज हो सकते हैं. लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव और कुछ हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव होते हैं. बट कुछ ऐसे हैं जो दोनों में होते हैं. लेट्स सी. प्ले. माय पेरेंट्स प्ले द पियानो. अब यहां पे है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट. वी आर रीडिंग व्हाट? योर न्यू बुक. एड कैंसल्ड व्हाट? द रिजर्वेशन. डोंट फॉरगेट टू रिटर्न व्हाट? दोज बुक्स. दे रन अ कैफे. यू नो. तो लेकिन सेम वर्ब को हम जब इंट्रांजिटिव में करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, तो इस तरह का होगा. देयर वर सम किड्स प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट. क्या फुटबॉल, क्योंकि इसमें कुछ दे तो नहीं रहे ना. फुटबॉल तो वैसे ही एक खेलने की चीज है. ठीक है. द किड्स वर प्लेइंग, ये भी ठीक है बिल्कुल. वी आर रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट है. had cancelled. Sarah returned home after her trip to Europe. How fast can you run? इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन जो है रन, रन तो है, सिंपली वर्ब है. दैट्स वेरी गुड. ओके. अब हम अंडरलाइन करेंगे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स को. So I hope that you can see it on the screen. She held the coffee pot in mid-air. जी बताएं. Held is a verb. Yeah. Transitive है ना. She held what? The coffee pot. He dipped his finger in the milk. Dipped is a transitive verb. How? He dipped what? He dipped what? Yes. He dipped his finger. Good. Its legs hung limply. Intransitive. Okay. Intransitive. The river flows gently through the valley. Intransitive. Intransitive. Jody slipped from the table and went to his father's bedside. Intransitive. He rose slowly. Transitive. Rose क्या है? Rise का past form है, but there is no object, just an adverb given at the end. Slowly is an adverb. All right, good. So we have underlined that. So what is the transitive verb in this sentence? The teacher explained the concept. Explain. Explain. Choose the correct statement of transitive verb. अब ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास. Transitive verbs never have a direct object. No. Transitive verbs always require a direct object. Transitive verbs are always intransitive. ये भी गलत.
Transitive verbs are irrelevant in the sentence. Option B. Option B is B. the correct one. Okay. The chef baked a delicious cake. The transitive verb here is Baked. Baked a bake delicious it. cake. Identify the intransitive verb in the sentence. The flowers bloomed in. Bloomed. Bloomed. Okay. The flowers bloomed in. फूल खिल उठे, खुल गए, bloom हो गए. ठीक है. Choose the correct statement about intransitive verb. इसे पढ़ें one by one. Intransitive verbs always have a direct object. Intransitive verbs never have a subject. They have a subject. Sir, option C is correct. Intransitive verbs cannot take a direct object. Yes. All right. The cat slept on the windowsill for hours. The intransitive verb is Slept. G. Slept is an intransitive. Good. All right. So हमने मेन, हेल्पिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सबकी एक्सरसाइजेस की हैं, एक्टिविटीज की हैं, पहचाना है उन्हें. और वन मोर थिंग दैट इंट्रांजिटिव वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है सेंटेंस में और बाद में भी आपको मिल सकता है. आपने ये देखना है कि वो किस चीज को आंसर कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है और कौन इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है. वो पहले भी मेंशन हो सकता है और बाद में भी हो सकता है. गुड. नाउ ये सिमुलेशन वीडियो आप देखें तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन, हेल्पिंग एटसेट्रा. नाउ ये हमारी वर्कशीट है जिसमें यू हैव टू फाइंड द एक्शन वर्ब इन इट. ये आप खुद सॉल्व करेंगे सब. ठीक है. एंड यू हैव टू सबमिट इट बिफोर द नेक्स्ट लेसन. ओके. फॉर होमवर्क क्या है? वर्कशीट तो है वेरी इजी टू सॉल्व. होमवर्क इज अ लिटिल मच एफर्ट टेकिंग. ओके. Make sentences for each type of verb, transitive and intransitive. Be creative and ensure that the sentences clearly demonstrate the use of either a transitive or intransitive. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को यूज करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे एक से ज्यादा. मेक सेंटेंसेस यूजिंग मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड हाईलाइट द वर्ब्स. कौन से मेन है, कौन से हेल्पिंग है, हाईलाइट करेंगे और कोशिश करें डिफरेंट टेंसेस में आप इस एक्टिविटी को करें ताकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब क्लियर हो जाए. ओके. So we have worksheet, our question bank, our presentation and our skill sheet. Okay, can we move on to our question bank? Sumit. Okay. जी स्टूडेंट, समझ आ गई आपको about today's SLO? ओके. अब जब आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि कौन सा इंट्रांजिटिव है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा ट्रांजिटिव है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वो कौन से वर्ब्स हैं. कैन यू नेम एनी 5 वर्ब्स जो सिर्फ ट्रांजिटिव होंगे? हो सकता है. कैन यू नेम सम वर्ब्स विच आर ओनली intransitive and can you Yes. name some which are both? Good. Yes. Additionally, all right. Sir, I have a question. Yes, please. In homework, we have to make sentences of each tense, like continuous, indefinite, perfect, perfect continuous. नो, हर सेंटेंस को करने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं. Like one from continuous, one from हाँ, indefinite. इस तरह कर लें. क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस को डिफरेंट वो करेंगे तो वो होमवर्क आपका बड़ा हो जाएगा. All right. Let's look at this question bank. Question number 1. Identify the main verb in the following sentence. She is reading a book. G students, what is the main verb? Reading. Yes. Which of the following is a helping verb? इनमें से कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? रन, ईट, हैव और डांस. Have. Have. ओके. इन द सेंटेंस Sir. ही रोट अ लेटर, हमारे पास एक सेंटेंस है ही रोट अ लेटर एंड द वर्ब रोट इज व्हाट इज इट? Transitive. गुड.
क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या लिखा, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए. Which sentence contains an intransitive verb? They completed the no. The dog chased the cat. The dog chased the cat. She sings beautifully. He threw the ball. इन सब में A, C और D में सब में ऑब्जेक्ट है. B में ऑब्जेक्ट नहीं है. ऐसे ही है. सर स्लाइड क्लियर नहीं है. अब नजर आ रहा है आपको? नो. सर स्क्रीन कर दें तो शायद नजर आए. यस राइट. जी अब क्लियर है? बताएं यस क्लियर है. क्लियर है कौन सा सर. ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? शी सिंग ब्यूटीफुली. Good. Identify the indirect object in the following sentence. She gave her Gave. friend a gift. Indirect object बताना है आपने. Her friend. Gave. जी, her friend. Her friend. Okay, good. Which of the following sentences contain a transitive verb with a direct object? He runs quickly. ये तो नहीं है. ये तो intransitive है. Teacher explained the lesson. Yes. क्योंकि A, C और D में बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो B इज द राइट आंसर. वेरी गुड. किसने आंसर किया ये? अभी है. गुड. इन द सेंटेंस ही सेंट हर अ मैसेज. सेंट क्या है? What is it? Transitive with a direct object. जी, गुड. Which of the following sentences contains a main verb and a helping verb? किसमें है मेन वर्ब और First हेल्पिंग वर्ब? contain helping word are. The गुड. children are playing outside. Good. Are is the helping verb or playing is our main verb. Identify the direct object in the sentence. She cooked dinner for her family. What is the direct object? Her family. Cooked. Cooked. Her ये हमारा family. direct Her object है. family. Good. जी. Her family is indirect and our dinner बनाया ना उसने, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? दोबारा सोचें. Dinner. Okay. Which of the following is an example of a transitive verb? I bought a new book. जी. I bought a new book. गुड, क्योंकि यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ओके, 4 questions लेफ्ट. इन द सेंटेंस ही फाउंड द लॉस्ट की. फाउंड क्या है? कौन सा वर्ब है? Transitive. गुड. विच सेंटेंस कंटेन्स अ हेल्पिंग वर्ब? कम ऑन फास्ट. They will go to the party. Good answer. Identify the transitive verb in the sentence. She mailed the letter to her Mailed. friend. Letter. ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है. लेटर. Letter. Mailed. लेटर कौन कह रहा है? Fatma. सर हम कह रहे हैं. जी. Letter sir. Sir, mailed is a transitive verb. मेल है ना हमारा, हम ऑब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहे. Mail क्वेश्चन को होगा. ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन को. इन द सेंटेंस ही टोल्ड द क्लास अ स्टोरी. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज Story. Story. स्टोरी. कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? The class. The class. क्लास. ओके गुड. क्लास. अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है आपको? अभी भी कंफ्यूजन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? किसको कंफ्यूजन है अभी भी इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? सर मुझे confusion है. जी बताएं. देखें, अब ये क्वेश्चन 14 ले लेते हैं हम. ही टोल्ड द क्लास अ स्टोरी. क्लास को निकाल दें. ही टोल्ड अ स्टोरी. स्टोरी क्या है? आप भूल जाएं कि यहां पे क्लास का वर्ड है. क्या होगा? अगर हम कहें ही टोल्ड अ स्टोरी, तो स्टोरी क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना.
फातिमा, यस सर। लेकिन अगर बीच में एक और चीज आ रही है, क्लास आ रही है, किसको स्टोरी किसको सुनाई जा रही है? क्लास को। ऑब्जेक्ट आगे कौन रिसीव कर रहा है? क्लास, तो क्लास होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक दफा माइनस कर लिया करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा, तो जो माइनस हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, which of the following sentences contains an intransitive verb? जी फातिमा, आप बताएं। He finished his homework. She ran quickly. जी, she ran quickly. Very easy. Good answer. Okay, students, get me on the screen. जी students, तो today's SLO is very much clear. I hope we have covered verbs, main and helping verb. हमने एक डायग्राम देखी कि डिवीजन किस तरह की है verbs की, और हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव verbs के बारे में भी बात की। अब किसी को कंफ्यूजन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में? जी आसिफ। सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स थोड़ा सा फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। जी शॉर्टली मैं आपको बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है? सर ऐसे ही डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। नहीं नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दो किस्में हैं ऑब्जेक्ट्स की। एक दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है उसे हम डायरेक्ट कहते हैं, जो इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। बाकी तफसील से नेक्स्ट लेसन में हम, अगर कोई कंफ्यूजन है आपकी तो बिफोर वी स्टार्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, हम इसको एक दफा फिर देख लेंगे। ठीक है? और कोई कंफ्यूजन है आपको? सर हमारा फिजिक्स का लेक्चर है अभी। फिजिक्स का लेक्चर आपका मंडे को होगा, ऑन मंडे। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आप वर्कशीट्स को सॉल्व करें और आपको सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आप एक दफा स्किल शीट भी देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ओवरव्यू कर लेंगे तो आपकी कंफ्यूजन ठीक हो जाएगी। ठीक है आसिफ जावेद, व्हाट्स योर नेम? ओके, दैट्स रियली गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।